Assalamu alaikum. So this is a very different video from the videos I normally make, but I decided to make this because it might help my future juniors or semester mechanical engineering students. Since the fall 2025 semester session will begin soon in September, inshallah. So yeah, I'm going to be a third semester mechanical engineering student, inshallah, in fall. So here are some things and tips and things that I wish I'd known before I started um, my studies, I guess. So, welcome if you've qualified for mechanical engineering, bachelor's in mechanical engineering. If you're starting it, congratulations. I wish you all the best. So, first of all, let's talk about the very first day. So, for us, it was 2nd September 2024. First of all, what you're going to do is you're going to have to go to mechanical engineering department, and let me just add a drawing of the guideline. That's going to be like that. You're going to go to mechanical engineering department on the ground floor, and you're going to see the wall, and the wall's going to have a board on it, a bulletin board, and that board will have the names of the students that will be in which section. So we had 4 sections, and I'm pretty sure it's going to be 4 sections again, A, B, C, D, right? So they're going to tell you what section you're in. You're going to search that. They're not going to tell you, my bad. You're going to search your name and upper section ka naam likha hoga, and then they're also going to have timetable attached to it. There was a timetable attached on our side too when we went there, and you're going to know you're going to know where your classes will be held. So back for then, I'm not sure about change because I heard some teachers say that they might change their seating arrangement for first semester mechanical engineering students, future first semester mechanical engineering students. But if it's the same, then if you're in section A, you're probably going to be at M15. M15 is M block. And if you're going to be in section B and section C and section D, you're going to be all together at automotive department. Because I started crying. I thought they shifted me from mechanical engineering to automotive engineering. You're still a mechanical engineering student. They just changed your classroom. They make sure you're just going to sit there at automotive because probably जगह नहीं होगी आपके लिए in mechanical engineering department right now. अगर होगी तो आपकी खुशकिस्मती, हमें तो उन्होंने automotive, they sent us at automotive engineering department. So where automotive engineering department is, you reach IBM department. It's that gigantic blue and white department. It's a very fancy department, okay? IBM department. Then आपने आगे जाना है IBM department के, and आपने सिर्फ सीधा turn कर लेना है, like सीधा नहीं कहूँगी मैं, direct उस तरफ, you see the direction, direct turn कर लेना. You're gonna see a park like area with no fences. With fences, I think fences are like in park like area. You're gonna go ahead and चलते जाना, you're gonna see the automotive engineering department on you. So yeah, if that happens, you're gonna go to automotive engineering department, and it's gonna be on the first floor. So आपने सीढ़ियाँ चढ़नी, you're gonna climb the stairs. Anyway, okay, let's talk about the classroom environment. If you're thinking you're gonna be studying in an AC hall, I'm sorry, that's very unlikely unless you're in IBM department. I think शायद IBM में है. But you're gonna be having fans and a spacious classroom. Not very spacious classroom, but like you're gonna have windows and seats, 9 class wali seats नहीं होती थी, like chairs with that small weird shaped small wooden board that served as a table. You're gonna have those kind of chairs, mashallah. We survived with that too. You're gonna have that for the next 2 semesters, maybe for the only 1 semester if you're lucky, or maybe not for either of the semester. There's gonna be a whiteboard and a podium like thing जहाँ पे you can put your stuff when you're giving a presentation, or where there's usually a board marker or a duster, and you're gonna also have a क्या कहते हैं उसको जो presentation projector होगा, and you're very likely the thermodynamics 1 की theory के sir will use that, and engineering graphics and drawing theory की ma'am will also use that. So yeah, best of luck. If you're in section B और आपका very likely AM206 में हो जाता है, I would wish you good luck because I was in section B too. Well, first section D में थी, but I got my section changed, and that classroom was very stuffy for me. We used to usually leave our classroom at the very beginning before our classes started. For a while, we used to linger around in the hallways or even down sometimes. And even in free lessons या फिर break में बाहर चले जाते थे because it was really claustrophobic. The windows weren't helping at all. But section D, in my opinion, section D का classroom था ना, AM208 and AM207, it was much better. Both of these rooms were comparatively much better than AM206. As for section A, well, M block, you're going to probably have M15 if it's the same as last year. You're going to have M15, which is M block, and M block is like a very old building, used to be old mechanical building.
सो या एम ब्लॉक में ही आपकी लैब होगी थर्मोडाइनमिक्स की, थर्मोडाइनमिक्स लैब 1 की लैब, अगर आपको सर भुट्टा पढ़ा रहे हैं, सर डॉक्टर भुट्टा। और अगर आपको और ऑल्सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग लैब होगी आपकी वहाँ। एनीवे एम ब्लॉक इज़ वेरी काइंड ऑफ फार, इट्स लाइक रियली फार। सो डायरेक्शन के तौर पर अगर मैं आपको कहूँगी GCSE से आप आगे जाओगे ना, GCSE से आगे जाके आपने जो नेक्स्ट टर्न आएगा ना, उसके फ्रंट वाला टर्न, जिससे आगे जाके फ्रंट वाला टर्न आएगा, आपने वहाँ आगे चले जाना, वो एम ब्लॉक होगा। इट्स अ वेरी सफोकेटिंग प्लेस। अगर आप विंडोज़ M15 में खुला रखो तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, पुरानी बिल्डिंग है, सो इट्स अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग, लाइक वेरी ओल्ड बिल्डिंग। सो या गुड लक टू यू, बहुत चलना पड़ता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन बी थी नॉट सेक्शन ए। सो या उसके अलावा बस का मैं बता देती हूँ। सो the bus usually started from its first point at 6:45 to 6:50 and your bus will likely leave at 4:15। ठीक है, आपकी मतलब यूनिवर्सिटी से निकल जाएगी और आपने फॉर दैट आपको पता चल जाना है आपको गेट नंबर 2 वाली साइड पे जाना है। इट्स लाइक दैट स्ट्रीट वे दैट टेक्स यू गेट नंबर 2। इंडिकेशन ऑफ गेट नंबर 2 इज़ ऑल्सो कि ये इसके साथ ही ना वो है एडमिन ऑफिस है और उसकी दूसरी साइड टिपू टक शॉप है एंड दैट्स अ वेरी नाइस प्लेस। यू कैन गेट लेमनेड गाइज, यू कैन गेट अ ग्लास ऑफ लेमनेड फ्रॉम देयर, इट्स सो गुड, एंड समोसास टू एंड फ्राइज टू। इनके लेमनेड इज़ माई फेवरेट। दैट लेमनेड मेड मी सर्वाइव अ लॉट, इट मेड मी सर्वाइव लाइक नवंबर एंड सितंबर अक्टूबर। सो या उसके अलावा व्हाट एल्स। अच्छा, तो बाय द वे वन मोर थिंग, बसेस का अगर आपको पता चलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो कि आपके पास कहाँ से कौन से रूट वाले जाती है, तो आई थिंक इंटरनेट पे भी कुछ होगा, देयर मस्ट बी समथिंग, आई थिंक यू कैन डू सम रिसर्च ऑन इट। इफ देयर इजंट देन देयर इज अनदर सोल्यूशन फॉर दैट। कहते हैं बस स्टॉप, बस वाली जगह है, देयर इज दिस छोटा सा पार्किंग वाला एरिया, ठीक है। ये डिज़ाइन सेंटर के बिल्कुल साथ है। डिज़ाइन सेंटर इज़ दैट वेरी प्रिटी बिल्डिंग दैट्स ऑपोजिट टू द BCSE, इसके बिल्कुल साथ है, इस तरफ है। तो उसके साथ पे एक खुली सी जगह है, जैसे पार्किंग वाला एरिया है, वहाँ पे बसेस पड़ी होती हैं, दैट्स दैट एरिया। आपने मॉल सा रूम, मॉल से डोर है, ठीक है, उसके साथ एक और दैट्स द डोर ऑफ द बाथरूम, इट्स अ वेरी स्टिंकी प्लेस एनीवे। तो वहाँ you're gonna go to that small room and there's gonna be a desk and some men sitting there, some uncle वहाँ बैठे होंगे। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि अंकल मैं अगर EME से मैं कौन और मैंने बस लेनी है, मैं कहाँ से आऊँगी। एंड गाइस द buses are free of charge, okay, you don't have to pay any fees for the bus etc, okay। maybe शायद आपकी वो fees of the semester fees के साथ added हुआ है, I don't know or not know, we don't have to give the bus uncle any money, okay। and yeah, वो आपको बता देंगे एंड यू कैन ऑल्सो गिव यू द नंबर ऑफ योर ड्राइवर। पहले दे यूज टू हैव अ पिक्चर ऑफ द रूट नंबर्स, दे हैड रूट्स कितने थे, आई थिंक 21 तक थे, आई एम नॉट रियली श्योर, मे बी अ बिट मोर, बट दे ऑल्सो हैड द नेम ऑफ द ड्राइवर्स एंड द नंबर्स, बट इट्स वेरी लाइकली कि वही वाली लिस्ट लगाई होगी एंड दोज नंबर्स आर आउटडेटेड बिकॉज मेनी ड्राइवर्स डिड चेंज। सो या डू आस्क देम एंड यूल गेट टू नो, ठीक है। और बस भी ना वहाँ पे जब शुरू में यूनिवर्सिटी आती है ना, व्हेन द बस टेक्स यू देयर, तो दे यूजली पार्क द बस एट वो बस स्टॉप वाली जगह, दैट खुली सी स्पेस जो मैंने अभी आपको बताया, वहीं पार्क होती है और वहीं से निकलती है और फिर गेट नंबर 2 वाली साइड से जाके निकलती है, गेट्स आउट फ्रॉम देयर। सो आती भी गेट नंबर 2 से और जाती भी गेट नंबर 2 से, नॉट गेट नंबर 3, कीप दैट इन योर माइंड। सो या और कौन सी बात है, ओके लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स गाइज। सो subjects, engineering, let's talk about the first one, the one subject I despise more than anything in this world, engineering graphics and drawing. You're going to have theory and lab too. Hopefully अगर सब subjects change, अगर semester के subjects इस बार change ना हो जाए, but according to the perspective I think they're the same anyway। So engineering graphics and drawing, theory, let's talk about lab first. It's 1 credit hour, theory is going to be 2 credit hour. So lab में you're going to probably have Sir Haris Hussain and your lab's going to be at M block, the first floor। आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़नी है और सर का ऑफिस भी वहीं है एंड on the very first day of your session he's going to tell you the things that you need to get, you need to write them down and make sure you have them in any class, and you should also have the book. I would suggest having the book he's going to ask you to get, probably वो होनी चाहिए आपके पास। PDF form is not a good idea or class had it most of the time though, but I would suggest कि आपके पास book होनी चाहिए, it's better, it's much better, much easier, understand। anyway तो आप बुक रखिएगा अपने पास and he's going to tell you to get the stuff and you're probably going to also have to get half scholar sheets for every sheet you're going to make। So मुझे किसी ने बताया था कि half scholar sheets usually they usually like उनका कलर ना थोड़ा सा डल हो जाता है, पीला सा हो जाता है after if you keep them for a while। I didn't really test this theory out, but I would suggest कि when you have a class of PGD आप उसी दिन sheets को BSc से ले लें, क्लास से पहले ले लें, better idea यही है। Make sure you have all the stuff and make sure you pay full attention to the first 3 to 4 lessons or yeah, listen to sir, sure do not come late, he's gonna make you give a fine for coming late। so आपका नाम लिख लेंगे sir and you'll have to give a fine। so yeah,
और you're also going to have a evaluation and a project most likely, जैसे उन्होंने हमारे साथ किया था project and evaluation उन्होंने हमें sheets दी थी, you had to make sheets, नहीं not sheets, sorry, evaluation में ना सर ने हमें एक like होता नहीं test paper, sir gave us a test paper, we had to solve that, and for our project we had to think of, sir gave us like some options, we had to make that, or are you going to have a mid-term project and a final term project as well. mid-term वाले के लिए best of luck, फाइनल टर्म वाले के लिए बेस्ट ऑफ लक. मिड टर्म वाला मुझे याद नहीं है, फाइनल टर्म वाला ही गिव अस 5 options and we had to think of an idea that went for that 5 6 7 options. He will give you a PDF of that if your Sir Haris system, and you're gonna have to make something that falls into that. You're gonna have to come up with something that falls into that. First of all, you're gonna discuss your idea with sir. If he approves of it, then you may proceed. Anyway, other than that, we have engineering, graphics, and also Sir Haris is not a bad teacher. He's also from mechanical engineering department, and someone told me that if your teacher is from mechanical engineering department, from your own department, then it's likely you'll be seeing them a lot. Okay, so yeah, Sir Haris is not a bad teacher. He's a very stern, but he's a very understanding sir as well. He's very strict, and it's better if you do not try to be a delinquent in his classes. Pay attention to him thoroughly, and yeah, be a good student in his class. And he did हमें काफ़ी लीनियंसी उन सर ने दिखाई थी, but sir gave me a B+ project के, I was very salty about that. प्रोजेक्ट में सही उन्होंने, बाय द वे ही ऑल्सो लाइक उन्होंने पूरा दिखाया था कि हमें किसमें कितने मिले थे, लाइक हमें इवैल्यूएशन में कितने मिले थे, शीट्स में कितने मिले थे, एथिक्स की भी ग्रेडिंग हुई थी. तो या उसके अलावा इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एंड ड्राइंग थ्योरी है हमारे पास. इट्स अ 2 credit और सब्जेक्ट. द क्लास विल बी एट योर क्लासरूम, ठीक है. एंड यू कैन हैव मैम, इट्स वेरी लाइक यू कैन हैव मैम राबिया सहर. नाउ अबाउट मैम राबिया सहर, उनके पास बहुत थोड़ा आहिस्ता बोलती हैं, वो मास्क भी पहनती हैं, तो इफ़ यू कैन नॉट हेयर प्रॉपर्ली, आप आगे बैठें, आपको फिर भी समझ ना आए, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप कैन यू प्लीज़ रिपीट द थिंग यू जस्ट सेड. एंड शी यूजुअली वो बुक से पढ़ाती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय ND Bhatt, सो मेक श्योर यू हैव दैट बुक. एंड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर क्लासेस, फर्स्ट 2 लेक्चर्स में उन्होंने प्रॉब्ली आपको सिलेबस कोर्स आउटलाइन बता देना है, तो आप ना बुक से गो थ्रू कर लीजिएगा. प्रॉब्ली अगर मैम राबिया सहर या कोर्स वही है, तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग वाली बुक से ही पढ़ाएंगी, और वो प्रोजेक्टर इस्तेमाल करेंगी. शी इज़ गोना यूज़ अ प्रोजेक्टर एंड शी इज़ गोना टीच यू फ्रॉम दैट. एंड वन मोर थिंग, डू नॉट टेक द सब्जेक्ट लाइटली, ठीक है. इट्स नॉट एज ईजी एज इट सीम्स. मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी अंडरस्टैंडिंग प्लेन्स एंड परपेंडिकुलरिटी, पैरेलल प्लेन्स एक्सेट्रा, और या अबाउट projection of a plane, projection of a point, projection of solids, cubes, and एक और टॉपिक था, आई फॉरगॉट. एनीवे, बट डू नॉट टेक द सब्जेक्ट लाइटली. अगर आपको कहीं भी समझना आए ना, डू नॉट थिंक ओ माय गॉड आई एम गोना गो होम, गोना वॉच अ वीडियो, 1 or 2 videos, आई एम गोना अंडरस्टैंड इट. ऑल्सो देयर आर, बाय द वे, वो होमवर्क देती हैं, but there's videos on that too. You can take help from that. Our entire class, almost our entire class did that. They used to send the video link of the solutions of that specific exercise or question that ma'am told us to solve and लेकर आने हैं. तो आपने इसको वाइट पेपर पे करके लेकर आना है, वाइट ब्लैंक पेपर पे करके ना लेकर आना है, मैम को दे देना आपको, ठीक है. उसके अलावा मैम यूजुअली लेट आती हैं, सो वेरी लेट, 20 to 30 minutes लेट. आई होप शी इम्प्रूव्स ऑन दैट. बट अगर आपको समझना है, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट एंड डू आस्क हर राइट अवे, ओके. एंड इसके भी पेपर होना है, तो या उसके बाद, और आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस दिस सब्जेक्ट, ओके. प्लीज़ डू. आई गॉट अ B ऑन दिस, सो या आई डिड प्रैक्टिस ऑन द लास्ट फ्यू डेज. आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा पहले तैयारी रिवाइज करते नहीं, अच्छी रखिएगा तैयारी. नेक्स्ट कम्स थर्मोडाइनमिक्स 1. So if you're lucky, you're going to have thermodynamics 1 theory, which is a 3 credit or subject, and you're going to have Sir Dr. Muhammad Usman teaching you. He's an amazing sir, like amazing. बहुत अच्छे सर हैं, ओके. मेरी बैटरी तो है ना उनकी आंखें, बहुत अच्छे सर हैं. he's very respectful and he's so माशाल्लाह, he's so intellectual and he's very helpful, okay. अगर आपको समझ ना आए, please do ask him. He will also ask questions. He will try to engage you guys. He will literally try to engage the entire class in a discussion regarding the chapters. Thermodynamics 1 theory is not easy. Do not take it easy, okay. 3 credit और का सब्जेक्ट है, और टॉपिक्स भी अगर वही वाले आप लोगों को करवाएं तो आपको करवाएंगे 1 2, तो इतना फोकस 1 पे नहीं देंगे, 2 3 4 5, ठीक है. ये आपके दोनों सेमेस्टर्स में करवाएंगे आपको, सॉरी दोनों टर्म्स में करवाएंगे ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है. you're gonna have thermodynamics 1 for the first semester, और फर्स्ट सेमेस्टर में 2 टर्म्स होती हैं, लाइक मिड टर्म एंड दी फाइनल टर्म, ओके. सो या हमें मिड्स तक करवाया था, हमें चैप्टर 3 तक करवाया था, विच वॉज प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंसेज. एंड मेक श्योर यू हैव, अगर आपके वही वाले सब्जेक्ट्स, आपके वही वाले चैप्टर्स हों, चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, उसके आगे पर मैथ्स एनर्जी ट्रांसफर, आई थिंक ये था, समथिंग लाइक दैट. मेक श्योर यू हैव
the property tables with you, okay, have them printed, do bring them in every class. Once he tells you कि लाना शुरू कर दें, आपके पास ये होना चाहिए, do get it and listen to him thoroughly and do not, मतलब please do focus on, because this is a very tough subject. And उसके बाद sir will also give you and a CP, it's a complex engineering problem, okay, ये एक रिपोर्ट होती है आपको बनानी होती है. He gave us a very tricky CP. उसका आंसर था on checks, लेकिन none of us were willing to get it. So आपने you need to use your brain for this subject. He's going to ask you thinking of the box kind of questions, so focus on that, okay? Focus on answers, use your brain, use your IQ, okay? I got a C in thermodynamics 1, which is really sad, but I really love thermodynamics. और अगर आपको समझ भी ना आए, there's so many books in the library you can read and figure it out. It's a very let's say tough but interesting subject, okay? So yeah, or sir is very nice, okay, he is very very nice and he will try to capture the entire focus, and he will keep eyes on you guys, okay? So do focus on his lecture. And then you have thermodynamics lab, thermodynamics 1 lab, okay? So ये theory की मैंने बात करी थी, but thermodynamics 1 lab की बात करते हैं. So it's a 1 credit hour subject, and for that you're going to go to M block, very likely M15. वहीं सर भुट्टा क्लासेस लेते हैं. आपके सर probably very likely डॉक्टर महमूद असलम भुट्टा होंगे, and he's a very intellectual sir as well. और आपके साथ वो भी होंगे सर. देयर इज़ अ सर दैट सिट्स इन द थर्मोडायनेमिक्स लैब एट एन ब्लॉक, मुझे उनका नाम भूल गया है, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड सर. वो वहीं अक्सर होते हैं, एंड ही इज़ वेरी हेल्पफुल एज वेल. तो सर भुट्टा का मैं कहूँगी, हम व्हेन वी गॉट इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था, और सम ऑफ द गर्ल्स टोल्ड मी कि सीनियर्स ने काफ़ी डराया था कि सर ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सर बहुत मतलब डांटते हैं उनसे बड़ा, और आपने मतलब आपने ना शोल्डर्स नीचे भी नहीं करने, और आपने पता नहीं पानी क्लासरूम में नहीं पीना, समथिंग लाइक दैट. नहीं, शायद सर भुट्टा ने खुद कहा होगा कि आपने पानी में क्लासरूम में पानी नहीं पीना, आपने बाहर जाके पी लेना. और क्या आपने लाइक अगर आप लिख रहे हो ना, आपने सर नीचे नहीं करना लिखते हुए, ओके? सो सर मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स डिड से सर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट सर उन्होंने खुद एज व्हेन ही वेंट फॉर PhD इन ऑस्ट्रिया, एंड ही सॉ PhD इन ऑस्ट्रिया, आई एम नॉट श्योर PhD, लेकिन ही वेंट फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रिया, and he saw कि कैसे स्टूडेंट्स फील करते थे. he himself told us कि he decided he would lay low on us, so sir was kind of like less strict on us. और सर ने ना लाइक काफ़ी हमें हंसाया था. सर की बहुत ऊंची आवाज़ है. सर हैज़ अ वेरी लाउड वॉइस गाइस. सर डॉक्टर भुट्टा and Sir Dr. Mohammad Usman are both from mechanical engineering department, so you will see them often as well. Sir Bhutta's office is on ground floor, and his lab will probably take place from 1 PM to 4 PM as well. 3 hours की lab होती है. And make sure you sit attentively in his class, okay? And sir शुमे sir ने drawing है आपको, but stay ready for that, and he's probably going to give you a task, so be prepared for that task. शुरू में ही देते हैं, वो एक होते हैं लैब सेफ्टी के रिगार्डिंग, वो देंगे आपको पहले, उसके बाद फिर आपके लेक्चर शुरू हो जाएंगे, और you're going to have a viva too. सर डॉक्टर महमूद असलम भुट्टा का होगा, महमूद असलम भुट्टा का वाइवा होगा, और वहाँ ना दिल कांपना शुरू हो जाएगा, बट एज लॉन्ग एज आपको सब कुछ आता है. और ऑल्सो सर सब क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट टू, बिकॉज सर यूजली आउट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे मेरे पूछते स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रिक करंट कितना होती है, ये नहीं सर नहीं बताया कितना होता है इलेक्ट्रिक करंट, स्टफ लाइक दैट. एंड यू माइट ऑल्सो आस्क कि इन योर ओपिनियन आपको क्या लगता है, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन धुआं ज़्यादा छोड़ती है या फिर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन धुआं ज़्यादा छोड़ती, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हमें पूछा था. बट वी डिड नॉट नो, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एनीवे. बट सर ने मेरा ग्रेड अच्छा लगा दिया था आफ्टर आई लिटरली रिक्वेस्टेड हिम. सो या आई डिड. और इफ़ यू आर अ गर्ल, आप यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू. इफ यू आर अ गाय, आई बिलीव इन यू. 2 गर्ल्स, अगर आपको वही OEL दे दें, OEL ज़रूर होना है. इट्स लाइक ए टास्क इज़ गोना गिव यू गोना हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑन इट टू, एंड ऑल्सो फिल्म अ वीडियो. वेरी लाइकली सर भुट्टा ने हमें कहा था कि आपको ना वीडियो पूरी ऑल वीडियो आपको रिकॉर्ड करनी थी ऑफ योर लाइक you with supervising the overhauling of a 4-stroke petrol engine and also of fuel injection pump. और वो कहेंगे आपको एक इनलाइन था और एक दूसरा का नाम है भूल गई, माय बैड. बट ये आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कहेंगे, आपको OEL रिपोर्ट का कहेंगे, और आपको एक और असाइनमेंट क्या कहेंगे, लेकिन ही वांट्स प्रूफ ऑफ यू दैट यू गोना हैव ए लैब कॉपी एज वेल. यू गोना हैव अ लैब प्रैक्टिकल लैब बुकलेट, और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट सीखने होंगे, आपको रीडिंग सीखनी होंगी, और मेक श्योर एवरीथिंग इज़ विद ए पेन, ओके? एवरीथिंग इज़ विद अ पेन, और आपकी ड्राइंग्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? यू गोना हैव टू. और आपके पास आपको ना पास बुकलेट भी होगी, ठीक है? लेकिन आपने इस बुकलेट से कॉपी नहीं करना, थर्मोडायनेमिक्स बुकलेट फॉर योर प्रैक्टिकल. और बिकॉज और सर ने कहा कि ही इंटेंशनली मेड मिस्टेक्स इन दैट बुकलेट, उन्होंने खुद प्रिंट करवाई थी ताकि ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करें. सर इफ़ यू गोना हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स फॉर योर एक्सपेरिमेंट्स, मेक श्योर यू टेक देम फ्रॉम द इंटरनेट एंड मेक श्योर इट्स ऑथेंटिक, या खुद से आप बना लें समथिंग, या फिर आपके सामने अगर है तो बना लें, ठीक है? दैट्स व्हाट आई डिड. और यूजुअली सर ना
सब स्टूडेंट्स टोल्ड अस कि सर ना कॉपी, सीनियर्स टोल्ड अस कि सर कॉपी फाड़ देते, तो हमें बड़ा डर लगा। तो और सेक्शन आई थिंक एक भी 2 स्टूडेंट्स की कॉपी पेजेस फाड़े थे उन्होंने। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन केस ही डज दैट, ही लेट अस ऑल गो। तो हमें ईजिली जाने दिया था, हमारी नहीं फाड़ी सर ने। बट ही डिड आस्क सम ऑफ अस टू रीड्रॉ एंड काफ़ी ज़्यादा सर ने पॉइंट आउट किया था। ही इज़ गोना पॉइंट आउट स्टफ टू इन योर वाइवा, मेक श्योर you are prepared for that, mentally prepared for that. So yeah, next subject mechanics कर लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपके सर प्रॉब्ली सर उमैर अशरफ खोकर होंगे। वो काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं, लाइक 2002 से उनकी टीचिंग है। ही इज़ गोना गिव लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ हिमसेल्फ इन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर क्लास। ही इज़ ए वेरी नाइस टीचर, ठीक है, लेकिन ही डजन लाइक इट अगर आपकी टेंशन बोर्ड पे ना और आप बातें कर रहे हो तो दैट वो आपको कहेंगे बातें ना करो एक्सेट्रा। एंड वो ना बहुत तेज़ बोलते हैं, बहुत तेज़ लिखते हैं, तो ट्राई टू स्टे विद दैट। और आल्सो गाइज आई रिकमेंड यू गाइज टू रिकॉर्ड योर लेक्चर्स एंड घर आकर रिवाइज कर लिया करें, रियली हेल्प मी अलॉट। लेकिन सर मेरे के लिए आपने उनकी क्लास आप पार्टिसिपेट करिएगा ज़रूर एंड आंसर क्वेश्चन। यूजली आपको कहेंगे कि सॉल्व को इसका कैलकुलेट करके इसका आंसर मुझे बताओ। और या सर समझा भी देंगे अगर आपको कुछ समझना है, ही विल आस्क अगर समझ आ गई है नहीं। सो इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड प्लीज़ डू आस्क हिम, देयर इज़ नो शेम इन आस्किंग अ टीचर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। और अगर आपको लगे कि ओ माय गॉड आई एम सो स्टूपिड फॉर आस्किंग दैट स्टफ, यू आर नॉट स्टूपिड, इट्स ह्यूमन एंड ओके। सो या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मेरा सी आया था। सो या आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट, आई एम रियली वीक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। पहले आपको फर्स्ट ईयर में स्टैटिक्स करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको ना करवाएंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डायनामिक्स, ठीक है। तो इन द फर्स्ट सेमेस्टर गोना हैव स्टैटिक्स, ओके, एंड यू शुड नो व्हाट स्टैटिक्स इज, ओके। उसके अलावा व्हाट अदर सब्जेक्ट शुड आई टॉक अबाउट? कुरान ट्रांसलेशन 1। नाउ अगर आप प्रॉब्ली आपके सेमेस्टर में कुरान ट्रांसलेशन होगा या फिर इस्लामिक स्टडीज़ होगा, ट्रांसलेशन 1 आ जाएगा। इट इज़ बेसिकली इसको ज़्यादा प्रोफेशनली कॉल इट ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान 1। सो यू गोना हैव दैट यूजली लाइकली कि आपको सर तलहा रशीद पढ़ाएं आपको, और सर बहुत बुरी मार्किंग करते हैं, जस्ट सो यू नो दैट। एंड क्लास पार्टिसिपेशन के भी मार्क्स होते हैं, वहीं भी मार्क्स लगा देते हैं। सो मेक श्योर ही नोज़, किसी तरह पार्टिसिपेट इतना करें कि ही नोज़ योर नेम एंड योर रोल नंबर, ओके। ही डिड सम ऑफ काफ़ी स्टूडेंट कईयों के साथ इंजस्टिस की थी हमारे केस में, और पेपर की भी बहुत बुरी मार्किंग सर करते हैं। सो यू गोटा बी रियली प्रोफेशनल इन दिस क्लास। और वो बहुत तेज़ बोलते हैं, तो आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कुछ समझ नहीं आई रोक लीजिएगा, सर मुझे समझ नहीं आ रही। और या यू कैन गिव दिस इन उर्दू एंड इंग्लिश टू, मर्जी आपकी। मैंने तो इंग्लिश में ही दिया था, एनीवे सर उर्दू में ही समझाते हैं, जस्ट सो यू नो ही टीचर्स इन उर्दू। यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, यू विल प्रॉब्ली हैव दैट टू। और आपको आइदर मैम सादिया गोंदल पढ़ाएंगी या मैम सादिया खान पढ़ाएंगी, एंड बोथ ऑफ देम आर रियली ग्रेट टीचर्स। मैम सादिया गोंदल इज़ वेरी engaging, okay, and if you don't understand a thing, please do not shy away, do ask her. She is very kind, she is very understanding, and she is very helpful, and she wants you guys to speak English in her class instead of Urdu, and she will have some rules that you guys should follow in the class, otherwise then कहीं भी उससे कुछ भी हो सकता है। and she does not want you guys loitering around before the class, so class से पहले she doesn't want you lurking around in the corridors or in the hallways or beneath, like in the ground floor. She does not want that, ठीक है। and other than that वो आपको tasks देंगी, maybe she might even ask you to make like 1 minute की clip of certain stuff she will, or in communication skills you will learn kind of कई नई चीज़ें she will, it's like it really tests you, I'd say. और at the end you're gonna have either she's gonna ask you to make a vlogumentary, हमें तो vlogumentary का था, you might also have a presentation as well. And अगर मैम सादिया खान हो तो it's very likely you're going to have an exam too. Usually there's no exam in lab subjects, this is a lab subject too, but the class is going to be it's going to be held in your classrooms, not in labs, if you get what I mean. It's not going to be held in M block, it's in your classroom, ठीक है। and it's also 1 credit hour, and I got an A in that thanks to her. Anyway, next we have applications of information communication and technologies. अब यहाँ आपके पास theory भी है, there is also a theory subject and a lab subject. So the theory subject is of 2 credit hours and the lab subject is of 1 credit hour, and the theory subject will be held in your class, and you're probably going to have Miss Maryam Wajiha teaching you, या फिर कोई और टीचर शायद आ जाए, बट वो ना थोड़ा ऐसा पढ़ाती हैं तो और थोड़ा तेज़ पढ़ाती हैं, तो यू कैन आस्क मैम समझ नहीं आ रही, आप उनसे कह दें मैम काइंडली रेज योर हैंड एंड जस्ट से मैम समझ नहीं आ रही, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, एंड प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल विद हर, प्लीज़ डू नॉट आस्क हर फुलिश क्वेश्चंस, ओके। अगर मैम मिस मरियम वजीहा हैं और भी टीचर, डू नॉट आस्क देम फुलिश क्वेश्चंस, एंड शी विल हैव
प्रेजेंटेशंस स्लाइड्स अपने प्रिपेयर की वहाँ से आपको पढ़ाएंगी और वो सेंड भी कर देंगी आपको, लेकिन आप फुल अटेंशन के साथ पूछिएगा. और शी यूजुअली ऑल्सो यू कैन हैव पेपर्स एग्जाम पेपर्स ऑफ दैट. शी इज़ गोना मेक अप आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस एज वेल. जैसे मैंने बहुत ना अजीब वो ना यूजुअली अपनी स्लाइड्स में ना शी डस्ट सॉल्व क्वेश्चंस. ओके, वो हमें करवाती क्वेश्चन, लेकिन वो ना लेट्स से उन क्वेश्चन को ना काफ़ी ऑर्डर कर देती है, बंदे को पता नहीं चलता. हमारे साथ ऐसा ही हुआ था. एनीवे, बट या बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और हमें पाइथन करवाई थी, उसकी भी आप खुद से तैयारी कर लीजिएगा. लेट्स टॉक अबाउट द लैब, AICT लैब. अब आपके सर प्रॉब्ली सर सालिहीन बख्त होंगे या फिर कोई और होंगे. तो सर सालिहीन वी कॉल्ड आई कॉल्ड हिम सालिहीन, उनका नाम सर सालिहीन बख्त है. एंड आपकी क्लास यूजुअली आपकी लैब जो होगी ये होगी कंप्यूटर साइंस लैब होगी, ये कंप्यूटर लैब होगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे होगी. ठीक है, सो आप स्टेयर्स चढ़ेंगे, आपने ना लाइक डायरेक्ट फ्रंट जाना है, आपने ना राइट जाना है, आपने सिर्फ फ्रंट जाना है और वहाँ लैब होनी है. ठीक है, वहाँ रूम होगा और वहाँ पीछे एक और सर बैठे होते हैं, ही इज़ यूजुअली सिटिंग एट द वेरी बैक. सो या, और लैब्स रिमेंबर लैब्स हमेशा 1 से 4 तक होती हैं, 1 से 4 PM तक, एक्सेप्ट कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ कोर्स. ठीक है, सर इज़ अ वेरी गुड टीचर, ही इज़ वेरी टैलेंटेड. और आपसे ही विल ट्राई टू गेट टू नो योर नेम्स, विल गेट टू ट्राई टू नो यू. और ही ऑल्सो इनकरेजेस पार्टिसिपेशन एज वेल. और आपका बाद में आपको आपका वाइवा भी होगा. ठीक है, वाइवा को से इवैल्यूएट करेंगे सर, और आपको शायद प्रोजेक्ट भी दे दें, समथिंग लाइक दैट. वो वाइवा के अंदर पूछ लेंगे, उसका वाइवा पूछ लेंगे. अदर देन दैट व्हाट एल्स डू वी हैव okay, the subject that really gives me trauma, calculus and analytic geometry. So यहाँ आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में ज़्यादातर करवाएंगे, और एंड में फिर आपको एक और सब्जेक्ट करवाएंगे, मैं उसका नाम भूल गई हूँ. बट मेक श्योर यू फोकस ऑन दिस. ओके, मेक श्योर यू फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट. इट्स अ 3 क्रेडिट सब्जेक्ट. और आपको प्रॉब्लम मैम साइमा नज़ीर या कोई और टीचर का मैम साइमा नज़ीर करवा देना, आपके मज़े हो जाएंगे. इट विल बी वेरी गुड फॉर यू बिकॉज शी इज़ सच अ नाइस टीचर एंड शी इज़ वेरी सैसी, शी इज़ अमेजिंग. और वो बहुत लीनियंट मार्किंग करती हैं और पेपर भी बहुत यूजुअली आसान बनाती है. बस मैं स्टूपिड थी, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड वेल. I did ask her to, but probably मैंने प्रैक्टिस कम की थी. So make sure you practice enough. The book you're gonna have probably is Thomas Calculus. ठीक है, she's gonna tell you to either get it in PDF or copy. लेकिन okay, नहीं, that's for physics, my bad. Okay, so it's better if you can get the copy from book. You can get the book from Book Bank. I think Book Bank library की Book Bank में भी होगा. But if like हमारे साथ क्या हुआ, we got our ID card in the second semester, so we weren't able to issue books in first semester. So this will be the book you're going to study. We're going to practice first. हम आपको बताएंगे कौन से करने हैं. And it's better you solve them, and in the next class you discuss them with her. I have engineering physics, which is a 2 credit subject. और आपको either मैम डॉक्टर इब्तिसाम रियाज करवाएंगी या फिर मैम खदीजा करवाएंगी. ठीक है, तो सेक्शन डी को मैम खदीजा ने करवाया था. आई वॉज इनिशियली इन सेक्शन डी एंड शी फोर्स स्टूडेंट्स टू हैव द बुक. फर्स्ट जब मुझे याद मैंने बुक का कहा था, तो इसलिए आई गॉट द बुक. अदरवाइज इफ यू हैव डॉक्टर इब्तिसाम मैम डॉक्टर इब्तिसाम, देन यू कैन गेट द PDF टू. हमें PDF से बाद में रीडिंग की. आई डिडंट रियली ब्रिंग द बुक because it's too heavy, man. How are you supposed to carry it if you're a day scholar every single day? मतलब जब आपकी क्लास हो. हमारी से 1 क्लास होती थी with this, but this is a group credit or subject. So pay full attention to this. I got a D+ in this, and I'm not even ashamed to say that. Okay, and pay full attention to this. डॉक्टर इब्तिसाम थोड़ा तेज़ पढ़ाती हैं, लेकिन शी इज़ अ वेरी नाइस टीचर. अगर आपको समझ आए आप उनसे पूछ सकते हो. All of these teachers are very nice. They can explain you again and again. एंड शोर शराबा ना करिएगा इनकी क्लास में. फुल अटेंशन के साथ रिकॉर्ड कर लें, अगर आपको समझ ना आए लेक्चर, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें. और मैम डॉक्टर खदीजा इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट है लेकिन वो ना काइंड है. शी इज़ ऑल्सो काइंड इन अ वे. ओके, लाइक दिस इज व्हाट आई कुड यूज़ फ्रॉम द फर्स्ट सेशन आई हैड विद हर. उसके बाद आई चेंज माई सेक्शन. सो सेक्शन भी मैं डॉक्टर इब्तिसाम ने पढ़ाया था. और या शी विल ऑल्सो गिव यू असाइनमेंट्स. डॉक्टर इब्तिसाम विल गिव यू असाइनमेंट्स. तो आप वो करिएगा ऑन असाइनमेंट शीट्स एंड यू गुड टू गो. असाइनमेंट शीट्स एज एन वो लाइनों वाली शीट्स नहीं होती वो. एनीवे, दैट्स इट. यू गोना हैव 18 credit hours and pay full attention to the subjects. Do not slack off like I did. And if you are unable to study at your home, you can study in the library. ठीक है, आप लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं. बस show them your slip. आप बैठ सकते हैं, लेकिन आप बुक्स इशू नहीं कर सकते unless you have your ID card. And well, your ID card is supposed to look something like this. Let me take out my wallet and show you guys. And here's my ID card. ये तो ट्रेन वाला है. I think I lost my ID card. 1 second. It's this. Okay, it's this. This is your ID card. UT का ID card होगा. ठीक है, you show this and you can get a book issued on the first floor. सीरियल चढ़ के नीचे you can have a study space वाला region, and there's also a place where you can do group projects. हम लोगों ने when we got EGD work to do, जब हम EGD project था हमारा, EGD lab का project था, so we all just asked teachers to cancel our classes and we all did our work there. All of us, like almost like entire class. ठीक है, तो वहाँ कर सकते हो. और एक लैब भी है, कंप्यूटर लैब. अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप वहाँ जाके अपने काम कर सकते हो. You're gonna need that for AICT lab and AICT theory. So yeah, very helpful reading. Or make sure you don't make noise in the library. The library is my favorite place. Or yeah, that's it. और BCSE भी आप जाके बैठ के खा सकते हो if you want to eat anything. And yeah, all the best. आगे जाके I'll make a video for the second semester too since I'm done with it. But this is the book for physics. Fundamentals of physics. और thermodynamics 1 lab की book थी, सर ने हमें करवाई थी.
पता नहीं कौन सी थी, मैं बता दूँगी, मेरा नाम भूल गया है, यूनिस एसेंशियल की बुक थी। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर दीज सब्जेक्ट्स गाइस वी डू नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट do study, do ask your teachers, okay? वो इतना करें, they're trying to teach you as, and yeah, just समझें, try to understand from them. If you still don't get it, if you ask them like 50 times, then आप YouTube से भी देखें, वो भी बहुत help कर लेगी. But please, here's a recommendation: do not slack off. I slacked off a lot in my first semester, and I didn't really get a good GPA, a good C GPA. लेकिन अब second semester में जाकर alhamdulillah I did improve. So make sure your focus was on your academics. मतलब इतना ज़्यादा नहीं, do not really burn yourself out, but make sure you have a good grip on your academics, okay? और इवेंट्स का मैं कहूँ तो प्रॉब्ली सिर्फ वेलकम होनी है, और सोसाइटी की इवेंट शायद हो जाए 1-2, या फिर कोई वो हो जाए, क्या कहते हैं उनको, जो दे ब्रिंग पीपल टू इंट्रोड्यूस किया, जैसे हमें सेकंड सेमेस्टर में हमें बुलवाया था एक्सेलरॉन वालों को हमारे इसमें लाने के लिए. सो या पे फुल अटेंशन टू योर स्टडीज़ एंड आई नो यू गाइस कैन डू इट. बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यू गॉट दिस, यू कैन डू इट. एंड अगर आपको पास पेपर्स की ज़रूरत हो, डू मैसेज मी, ओके? पास पेपर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के, और like other seniors there, our class fellows are willing to help you out, most of them, so you can ask us. And if you need any help, you can also reach out to me on Instagram, if my Instagram is still activated, that is. Otherwise you can also message me on Discord. No, I don't think you can, I have turned off those settings. Anyway, you नीचे comment कर लीजिएगा, I'll make a drive of that. And yeah, best of luck, you can do it. Bye.